Let us continue the second lesson. Nelson Mandela, page number 20, first paragraph. Continuation, chapter 2, Nelson Mandela, page number 20. First paragraph from the top. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. Come about means happen. Sacrifices, balidan. Repaid, paid the price of. Paid the price of. That day, वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। वे लोग जिनकी पीड़ा तथा साहस को ना तो कभी गिना जा सकता है और ना उसका कभी मूल्य चुकाया जा सकता है। That is, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That is, the people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन बाकी दिन का जैसा जिन्होंने अफ्रीका के जो पेट्रियोट्स है, देश स्नेही है, उन लोग जो दुनिया से चले गए उनके बलिदान को मुझे याद आए. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all many other days, those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. वो जो समय बीत गए उन लोग भी चले गए, लेकिन उन लोगों का जो सैक्रिफाइस की जो नतीजा आज मेरे द्वारा दोबारा शुरू होने वाला है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दुख इसी बात की है कि मैं उसी को धन्यवाद नहीं कर पा रहे और वो स्वयं अपने बलिदानों का रोट क्या है, अचीवमेंट क्या है, वो देख नहीं पा रहे. इसी बात पर मुझे दुख है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means achieved, done. Meaning has given here old-fashioned formal word, done, achieved. उन लोगों को ना तो मैं धन्यवाद कह पा रहे और उन लोग अपने जो कर्तव्यों का या कर्मों का जो नतीजा वो देख नहीं पा रहे. नेक्स्ट पैराग्राफ. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people.
The policy of apartheid. Policy means system. Apartheid means racial separation, रंग भेद, जातीय भेदभाव, सब कुछ कह सकते हैं अपार्थाइड को. तो वन वर्ड क्वेश्चन में भी देयर, व्हाट डू यू मीन बाय racial discrimination? And for short answer question also be there, what do you mean by apartheid? The racial discrimination that existed in Africa, still existing, that is apartheid. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in many countries and my people. ये जो रंग का भेदभाव मेरे देश और मेरे लोगों के एक गहरा व स्थायी घाव बना दिया था. The policy of apartheid created a deep and lasting wound. Don't pronounce as wound, it is wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. इस दर्द को दूर करने के लिए मुझे और मेरे लोगों को कई समय तक मेहनत करना पड़ता है, हो सकता है जनरेशन तक करना ही पड़ता है. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Latulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time, men of extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. हो सकता है ये जो अपार्थाइड और जातीय भेदभाव और कई दशकों से जो चलते आ रहा, द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी had another unintended effect. ये जो लोगों को दबा के शासन करना, उसके साथ ब्रूटली व्यवहार करना, ये दोनों शायद उसका ये प्रभाव निकल आए कि जो नीचे तस्वीरों में दिखाई देने वाले कई देश स्नेही उत्पन्न हुए और इसलिए ये लोग जाना गया क्योंकि ये इस तरह की जो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी का सामना करते हुए जीवित रहा. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग पर्सनालिटीज. हर वर्ड के आगे दी लगाया है. दी ओलिवर मीन्स टू शोज द टोटल फैमिली मेंबर्स. ये पूरे परिवार के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़े हुए लोग हैं. द ताम्बोस, द वाल्टर्स सिंसलस, द चीफ लातुलिस, द यूसुफ डाडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट्स सोबक्वीस of our time. They are the men of such extraordinary courage and wisdom and generosity that their like may never be known again. अगर इन लोगों के साथ इस तरह की जो ऑपरेशन और ब्रूटलिटी किया हुआ नहीं होता तो इनका नाम शायद हम सुन नहीं पाते, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ और इसलिए इन लोगों के बारे में हमें देखने को और जानने को मिला है. Perhaps it required such depths of oppression to create such heights of character. शायद
इतना महान होने के लिए उनको ऐसा कुछ करना पड़ा जिसकी वजह से वो इतने फेमस हो गए. एंड माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइक बीनीथ इट्स सोइल. मेरे देश के बारे में बताएं, मेरी मिट्टी के बारे में बताएं, मेरी ज़मीन के बारे में बताएं. तो उस ज़मीन के अंदर इतना मिनरल्स है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैं उससे अधिक मेरे लोगों को सबसे बड़ा जेम्स मानता है, मिनरल्स मानता है. I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. डायमंड से कीमती वाले लोग मेरे देश के लोग हैं, ये मैं मानता हूँ, ये है भी सही. और इसी डायमंड के रूप में, इसी जेम्स के रूप में ये लोगों को भी गिना जा सकता है, बिकॉज दे हैव डन that much work for their country. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. इन्हीं लोगों से मैंने करेज क्या चीज़ है वो सीखा है. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार, time and again means बार बार. I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that it defies the imagination. और लोग बिना रुके परमानेंटली खड़े खड़े लड़ते हुए मैंने देखा. I have seen men stand up. Stand up means face to face, to attack and torture without breaking. और अत्याचार किया गया लगातार, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience का meaning दे रखा है, the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. किसी भी तरीके का पीड़ा हो उसका सामना करते हुए, उस पर विजय प्राप्त करते हुए मैंने मेरे जीवन में देखा है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने ये भी सीखा, वो जो करेज, दैट वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इसका मतलब ये नहीं है कि डर नहीं थे उन लोगों को, बट इट वॉज द ट्रायम्फ ओवर इट. लेकिन उन लोगों ने विजय प्राप्त करने तक ये साहस कार्य करते रहा. दैट इज़ द करेज दैट आई लर्नड फ्रॉम दिस पीपल. इन्हीं लोगों से मैंने ये धैर्य और ये साहस कार्य मैंने सीखा. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर का मतलब ये नहीं है कि वो डरते नहीं हैं, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. लेकिन उस डर को दबा के रह के विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है करेजियस पर्सन. दैट मीन्स ब्रेव पर्सन. यही मेरे को सीखना जरूरी था. दैट आई लर्नड फ्रॉम दिस पीपल. सो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. Next paragraph. No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. कोई भी ये देखते हुए जन्म नहीं लेते. No one is born hating another person. जन्म से ही किसी को किसी से नफरत होती ही नहीं है. और उसका कलर हो, उसका जाति हो, उसका बैकग्राउंड हो, उसका कंडीशन हो, उसका गरीबी हो, उसका धर्म हो, कोई सा भी चीज़ देख के नफरत नहीं आता. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को नफरत
क्या चीज़ें सीखना पड़ता है. And if they can learn to hate, they can be taught to love, or love comes from naturally to the human hearts than its opposite. अगर किसी ने नफ़रत सीखा तो उसको प्यार भी सीखना होगा. प्यार सीखना आसान है, वो नफ़रत से जल्दी समझ में आ जाते हैं. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the gods. जब मैं जेल में था, हमें इतना परेशान कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में वहाँ के गार्ड्स में से एक व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति मानवता देखने को मिला, ह्यूमैनिटी देखने को मिला, लव देखने को मिला, काइंडनेस देखने को मिला. वो एक वास्तविक बात है. लोगों में ऐसा, चाहे कितना भी दुष्ट हो, कितना भी क्रूर हो, कितना भी भयंकर आदमी हो, उसका अंदर के किसी न किसी कोने में लोगों के प्रति ह्यूमैनिटी रहता ही रहता है. वो आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स. परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो जो सहानुभूति हो सकता है थोड़ी देर के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. लेकिन उसका वो जो सहानुभूति देकर मेरे सारे दुख में भूल जाता था और समझता था, हाँ ठीक है, कम से कम कोई है. मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मनुष्य का अच्छाई जलता है और उसको छिपा भी सकता है, लेकिन बुझा नहीं सकता. मनुष्य का जो अच्छाई है वो ज्वाला है. फ्लेम मीन्स ज्वाला. वो छुपा नहीं सकता है और बुझा भी नहीं सकता है. लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मनुष्य का अच्छाई एक ज्वाला है जो छुपा सकता है, लेकिन वो कभी बुझा नहीं सकता है. दैट इज गुडनेस अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला. नोट द पॉइंट. मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन but never extinguished. You can also use these words in many situations. So note the line and learn by heart. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य का अच्छाई, मनुष्य का जो अच्छा गुण, जो काइंडनेस, जो वाट एवर इट इज लाइट, it is a flame. Sometimes we can hidden that, but nobody can extinguish it, or a person himself or herself can never be extinguished. इस तरह की कुछ बातें नेल्सन मंडेला अपने भाषण में और अपने बातों में रख दिया. So we will learn the next part next time.